Honorable member, question hour. Question number 46, Shri Mithilesh Kumar. Not present. Honorable Minister. पटेल पर रखा है। Dr. Fozia Khan for supplementary. Thank you, sir. Sir, the Social Justice Department has limited spending on key schemes such as the seed scheme for denotified, semi-nomadic and nomadic tribes, the National Action Plan for Drug Reduction, Demand Reduction, sir. Similarly, the Tribal Department also is underutilizing funds in Eklavya Model Residential Schools and the PM Adi Adarsh Gram Yojana transfer. Sir, what measures has the government implemented to identify and address the bottlenecks hindering the effective utilization of these policies and funds, given the increase in budgetary allocation for these schemes and the ministry despite the underutilization? Sir? Honorable Minister. सर, ये पंचायत राज मंत्रालय के संबंधित प्रश्न नहीं है। Second supplementary of the remaining three, Shri Sandeep Kumar Pathak. Thank you, Honorable Chair, sir. Sir, Mr. Bassar. Yes. Thank you, Mr. Honorable Pathak. Chair, sir. सर, आदिवासी भाइयों के अधिकारों, रीति रिवाज, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पेसा कानून 1996 में लागू किया गया था। इसके तहत लगभग 10 राज्यों में इस कानून को अब तक लागू हो जाना चाहिए था। सर, लगभग 28 साल हो चुके हैं, ये कानून सिर्फ कागजों में है, अभी तक धरातल पे उतरा नहीं है। कई भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि गुजरात। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 28 साल हो चुके हैं, 10 साल लगभग आपकी सरकार आ चुकी है, और कितना समय इस धरातल पे उतरने में लगेगा? सर, ये प्रश्न से संबंधित प्रश्न नहीं है। इनको पैसा की जानकारी अगर चाहिए तो अलग से दी जाएगी। में है Dr. Amar Patnaik. He can. Sir. One second. Honorable members, sometimes it appears to us that the answer is not forthcoming with respect to the supplementary. But we ignore one fact, that the supplementary is not relatable to the question. And therefore, the minister is well within his rights that it's a good supplementary, but it does not emanate from the question which is before the House. Dr. Amar Patnaik. Sir, the action by the ministry to train the Panchayat Raj representatives in management leadership in one of the topmost management institutes of the country, which is Indian Institute of Management, Ahmedabad, is really praiseworthy, sir. So my question is whether the modules include digital education to these political representatives, because on one hand, we are trying to increase the intensity of digital footprint in the rural areas, and unless these representatives are actually educated and trained in handling these digital assets, they would not be able to exercise their management skills. So whether this forms a component of the entire leadership program is a suggestion, and also if it is there, then it will be welcome. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से जो पंचायत राज संस्थान के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के आधार पर भी दिया जाता है। और वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में 2005 से लेके 2014 तक 27 लाख प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन 2014 से लेके 2024 तक लगभग 3 करोड़ 26 लाख जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें जनप्रतिनिधि जैसे चुन के आते हैं, 6 महीने के अंदर उनको
सामान्य अभिमुखीकरण का प्रशिक्षण जैसे जनरल ओरिएंटेशन, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर पुनश्चर्या कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। पंचायत विकास योजना GPDP, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमारी पंचायतें लगभग 2.5 लाख पंचायतें GPDP के माध्यम से गांव में जो उनके विकास का प्लान करते हैं वो GPDP के माध्यम से लोड किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी पंचायतों ने निश्चित तौर पर आत्मसात कर ली है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हम राजनीति में कहते हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक, लेकिन हमारी पंचायतें अभी पार्लियामेंट से पंचायत तक इस तरह का काम टेक्नोलॉजी का करने लगे। ये एक तरफ केंद्र सरकार PFMS के माध्यम से पेमेंट करती है, वहीं पे हमारी पंचायतें भी लगभग 2.5 लाख पंचायतें PFMS के माध्यम से पेमेंट करने लगी। ऑडिट ऑनलाइन भी 100% पंचायतें ये ऑडिट ऑनलाइन करने लगी है। निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, वो संकल्प के तरफ हमारी पंचायतें भी आगे बढ़ रही है। हमारी पंचायतें अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी गांव का DPR बनाना हो, गांव की विकास योजना हो, गांव का डेवलपमेंट प्लान बनाना हो, वो सारों को टेक्नोलॉजी का यूज करके पंचायतें आगे बढ़ रही है। इस सदन में कुछ सदस्य हैं जिनका सफर पंचायत से शुरू हुआ और पार्लियामेंट तक पहुंचा, वर्तमान में भी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1, डॉक्टर मित्तल। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हाईवे निर्माण में देश में बहुत ही बढ़िया काम किया और हमारा देश हाईवे में ऊपर जा रहा है लगातार। इसी में आगे बढ़ते हुए मंत्री महोदय जी ने 4 धर्म स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 4 धाम योजना शुरू की है। मैं पंजाब से आता हूँ। जिस प्रकार हिंदू धर्म में 4 धाम है, वैसे सिख धर्म में 5 तख्त हैं, जिसमें से 3 पंजाब में आते हैं, 1 बिहार में और 1 माननीय मंत्री जी के अपने होम स्टेट महाराष्ट्र के नंदेड़ में आता है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इन 5 तख्तों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए भारत सरकार क्या करने जा रही है? माननीय मंत्री जी। सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश के लोग जहाँ रिलीजियस टूरिज़्म तीर्थाटन के लिए जाते हैं उसमें अच्छे रोड बने। करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने बुद्ध सर्किट, ये जो पूरा जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, जहाँ उनका देहांत हुआ, सब जगह को 4 लेन रोड से जोड़ा है। फिर उसी प्रकार से हमने अयोध्या सर्किट बनाया। अयोध्या सर्किट में भी विशेष रूप से हम करीब 30,000 करोड़ का राम वन गमन यात्रा, सभी प्रकार का, सीता के जन्मस्थान नेपाल के भूमि तक वहाँ से उसमें कनेक्टिविटी की है। महाराष्ट्र में हमारा पंढरपुर हमारा बहुत एक लोगों का श्रद्धा का विषय है। तो देहू से पंढरपुर और आळंदी से पंढरपुर ऐसे 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग भी बनाया है। अभी सम्माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे थे, विशेष रूप से सिख पंथ में धर्म में जिस प्रकार की श्रद्धाएं हैं, उसमें अमृतसर से कटरा ये हाईवे हम जब बना रहे थे तो अमृतसर से जाते समय 4 भव्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुरुद्वारा थे, वो छूट गए थे और हम बाहर से कटरा जा रहे थे। तो विशेष निर्णय लेकर वो चारों को जोड़कर वो रोड बढ़ा करके उसका भी निर्णय किया गया। जहाँ तक इस प्रश्न में आज नांदेड़ से लेकर आपने जितनी बातें की है वो इस प्रश्न का भाग नहीं थी, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं थोड़ा एकदम प्रिपेयर एकदम शायद एक मेरे को लगता है कि वो सही है कि जितने गुरुद्वारों के बारे में आपने उल्लेख किया है, लगभग उन सब को हमने 4 लेन से अच्छी तरीके से जोड़ दिया है। अगर इसमें से कोई छूटा होगा ऐसा अगर ध्यान में आएगा तो वो भी जोड़ेंगे। ये तीर्थाटन बनने से आदरणीय अध्यक्ष महोदय बड़े प्रमाण पर लोग आ रहे हैं। जैसे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि 4 धाम का काम अभी थोड़ा ही हुआ है, आधा हुआ है,
फिर भी इतना लोग आ रहे हैं कि टूर आने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। और जब टूरिस्ट आते हैं तो 49% एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ हमारे तीर्थाटन के जो स्थान है उसकी कनेक्टिविटी, अब उसमें पार्किंग प्लेसेस, रोड साइड प्लाजा, जिसमें विशेष रूप से सरकार की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से भी वॉशरूम्स और बाकी बातों का वो भी काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे जैन धर्म के लिए भी हम लोग इसी प्रकार से जोड़ रहे हैं। सब प्रकार के मुस्लिम इसमें भी जो स्थान है उसको भी जोड़ने का हमने काम किया है, ताकि जो अब लोग वहाँ जाते हैं तो उनकी सुविधा हो। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अशोक कुमार मित्र। धन्यवाद सर। सर, जो मेरा पहला प्रश्न था मैं उसमें एक और निवेदन करूंगा कि हेमकुंड साहब को भी 4 लेन से जोड़ने के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। सरकार ने 56,000 करोड़ के बीओटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से शुरू करने की योजना बना रही है। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2022 तक 120 बीओटी प्रोजेक्ट्स में 48,000 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इतने वर्षों में भी फाइनेंशियल वायबिलिटी वाला मॉडल क्यों नहीं निर्धारित किया जा सका, ताकि जो भविष्य में हाईवे सेक्टर में एनपीए कम हो सके और जो 56,000 करोड़ के नए बीओटी आ रहे हैं वो फाइनेंशियल वायबल हो सके। माननीय मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हेमकुंड साहब का जो डीपीआर है उसमें एक रोपवे का निर्माण हम कर रहे हैं और शायद इस अधिवेशन समाप्त होने के बाद उसका भूमि पूजन करेंगे तो रोड के बजाय आप रोपवे से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हिमाचल में रोड बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ दोनों बाजू में फॉरेस्ट है और लैंड एक्वायर करना भी कठिन है और हिमालय का जो स्टार्टा है वो भी कभी भी गिर जाता है। तो ये रोपवे उसके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। शायद अगले साल में आप इस रोपवे से हेमकुंड साहब दर्शन करने निश्चित रूप से जा सकेंगे। सर, ये जो उन्होंने बीओटी प्रोजेक्ट की बात की, ये 4 प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। ईपीसी जो हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए देते हैं, फिर बीओटी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर खुद पूरी तरह से काम करता है, कंप्लीट करता है, फिर उसका कोट करता है कि इतने साल तक मैं टोल लूँगा, जिसकी ऑफर अच्छी होती है उसको काम अवार्ड होता है। और तीसरा, बीच में जब मैं मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के ये बन पड़े थे और 3 लाख करोड़ का एनपीए बैंकों में खड़ा था। अध्यक्ष महाराज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट सबको बुलाकर हमने ये सब प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर दिए। 20% प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, उसको रेगुलराइज कर दिया। जहाँ तक वो इस पूरे प्रकरण में आपने वकीलों की फीस पर बड़ा कुठाराघात किया है। हाँ, ये बात जरूर है सर, विवाद अगर खत्म हो गए तो वकीलों का काम ही नहीं आता। सर, ये दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बीओटी के कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैंने एक नया आइडिया तैयार की है, वो ऐसी है कि जैसे धनवान परिवार में अगर बच्चा नहीं होता तो दत्तक लेते हैं। तो पहला प्रयोग ऐसा हो रहा है कि पुणे से औरंगाबाद हम हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे, 2 घंटे में पुणे से औरंगाबाद होगा। अब वो बीओटी पे करना है, तो एग्जिस्टिंग रोड के जो 4 टोल थे वो हम बीओटी ऑपरेटर को दत्तक देंगे और वो पूरा पैसा 15,000 करोड़ खुद के लगाकर वो काम करेगा। ऐसा भी नया बीओटी ढूंढा है जिसमें सरकार का कोई पैसा लगेगा नहीं। तो अभी जो आप बता रहे हैं ऐसा बीओटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय जो प्रॉब्लम हुए थे वो लैंड एक्विजिशन के कारण, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण, तो अभी हम ये किए बिना ही हम लोग प्रोजेक्ट अवार्ड ही नहीं करते। तो अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पर बीओटी कर रहे हैं। अभी चेन्नई में एक रोड, उसके ऊपर ब्रिज, उसके ऊपर ब्रिज, फिर उसके ऊपर मेट्रो, फिर अभी पुणे में हम 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब बीओटी में कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं और अभी बैंक भी सपोर्ट कर रही है। और हमारा बॉन्ड इशू जो था अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं है। हम जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया था हमारा इन्विट मॉडल का, तो 7 दिन की लिमिट थी और 7 दिन के बाद वहाँ स्टॉक एक्सचेंज जाकर मुंबई में वो घंटी बजाकर उसको समाप्त करना था। पर पहले ही दिन 7 घंटे में
7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा जनता ने हमको दिया है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि अब हम लोग रोड बड़े लोगों के पैसे से नहीं बनाना चाहते, छोटे लोगों के पैसे से बनाना चाहते हैं। और हमारा बॉन्ड इश्यू में हम 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहे हैं। और ये भी सुविधा की है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको हर महीने में, यानी हर महीने में इंटरेस्ट उनके अकाउंट में जमा होगा। तो 8.05% कोई बैंक नहीं देती, कोई नहीं देता। तो आप सब रिटायर्ड होने के लिए जो लोग रहेंगे वो हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको 8.05% इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पैसे से आप रोड बनाएंगे और उसका फायदा गरीब आदमी को मिलेगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं। श्री संतोष कुमार पी। Sir, this toll booths are an integral part of national highways. So may I know the total amount of money collected through toll booths in the national highways of Kerala during the last financial year? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं था, इसका मैं जवाब देता हूँ। केरल का मेरे पास नहीं है, पर टोटल अभी अप्रॉक्सीमेटली 49,000 करोड़ हमारा इनकम है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, और इसलिए हम ये अभी निश्चित रूप से फास्टैग, यानी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, वो था जिसके ऊपर आप निकल जाते थे, वो 98.5% उसका पेनिट्रेशन हुआ। और अभी तक फास्टैग जो इशू हुए वो 8.13 करोड़ हुए हैं। एवरेज डेली कलेक्शन 170 से 200 करोड़ रुपए तक आता है। और पर मैं आपको सभागृह को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जल्दी ही हम शायद इस हमारे लोकसभा चुनाव के पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले, हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। श्री GVL नरसिम्हा राव, इनका भी सफ़र पंचायत से पार्लियामेंट तक है, सरपंच रहे हुए हैं। Thank you, sir. I'd like to congratulate Honorable Prime Minister and Honorable Minister for sanctioning more than 50,000 crores for highways this year. Sir, my question to Honorable Minister is about a particular toll plaza in Visakhapatnam city, Aganampudi Plaza, which is on a national highway, old national highway. A new national highway has already been constructed between Sabavaram and Anakapalli, but this old toll plaza continues to exist, and the people are actually, local people also do not have any exemption. As a result, they are suffering a lot. I'd like to appeal to the Honorable Minister to have the matter examined and to get this Aganampudi toll plaza removed as early as possible, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये कुछ जगह पर अड़चन आई है। हमारी सरकार आने के पहले यूपीए के कार्यकाल में प्रोजेक्ट में इकोनॉमिकली वायबल करने के लिए एक स्वीटनर करके नाम आया, और स्वीटनर के रूप में ये किया गया कि शहर के नज़दीक टोल खड़े किए गए, और बाद में वो टोल के टेंडर निकाल कर वो प्राइवेट पार्टी को मिल गए। अगर आज हम उसको टर्मिनेट करते हैं तो वो पार्टी हमारे ऊपर क्लेम डालती है, उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। पर आप कह रहे ये प्रिंसिपली बहुत सही है, और इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा इसलिए कि इस देश में टोल रोड की शुरुआत मैंने की, पहला पॉलिसी बनाई, और इसलिए शहर के बाजू में वो नौकरी करने जाता है उसको टोल लगता है, ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद हम निश्चित रूप से ये कर रहे हैं कि शहर के बाद 6-7 किलोमीटर दूर बाद में टोल होंगे, ताकि गांव वाले जो रोज़ इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं उनको तकलीफ ना हो। जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हम लोग रद्द नहीं कर सकते, नहीं तो वो कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। तो फिर भी नए इसमें ये जो आपकी तकलीफ है ये सही है, ये निकल जाएगी, ये हम जरूर प्रयास करेंगे। श्रीमती सुलता देव। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे स्टेट ओडिशा में कितने NH कंप्लीट
हो चुके हैं और कितने अनगोइंग हैं? जो अनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, खासकर NH 55 जो कटक संबलपुर रास्ता है भाया अनुगुल, वो अभी डेथ ट्रैप हो गया है और वो रास्ता कब तक खत्म होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा की पूरी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, पर इन्होंने जिस प्रोजेक्ट का उल्लेख किया था वो गायत्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था। वो कंपनी अब NCLT में चली गई है, पर उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर को एस्क्रो अकाउंट खोलकर पैसा देकर हम काम पूरा कर रहे हैं। मेरी जानकारी है कि आने वाले 2-3 महीने में ये काम बरसात के पहले पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर